Good morning dear students, welcome to Push English classes. Today I am very happy that you are watching my video. I hope you are enjoying the advanced writing skills that I taught in two parts, that is notice, and my only request is that unless and until you watch my full video, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आप उसकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे. So most of them are doing it, but those who are not doing it, my request, please watch full video and give your support and love to me as you are giving it to me. Thank you so much. And now today's topic is, in advanced writing skill I am going to teach you another short composition which is called poster. So poster, please focus on the copy now. So today I am going to start poster. Poster is actually designed for three purposes, children. Poster is designed to make an announcement. It is designed to create social awareness, and it is designed to pass on an information about an event so that people may be motivated to participate in it. It is also called, children, poster is also called all in one and one in all. Why all in one? Because it serves the purpose of notice, advertisement, invitation, and poster in itself. So that is why called all in one and one in all. Means it serves the purpose of all the 3-4 short compositions that we do. But yes, it has got its own format, and points to be kept in mind while you design a poster are these. First of all, it should be visually very attractive, and if it is not attractive, it will not capture the attention of the reader. तो आपका पोस्टर बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं बना है कि रीडर्स के अटेंशन को रोक सके, उनको कैप्चर कर सके, तो फिर आपके पोस्टर का कोई मतलब नहीं है. दूसरा, इट इज इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स. लाइक नोटिस हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि हमारा नोटिस जो है वो एक बॉक्स में होना चाहिए. सिमिलरली हियर ऑल्सो, draw the box after you complete the poster, or if you feel that you should draw it in the beginning, draw it, but don't close it from the fourth side. Third thing is that word limit should be 50 words. It should not exceed 50 words. Then fourth is, whatever is the topic, you have been asked to design a poster on whichever topic, the main topic should be very highlighted. In fact, it should be written in such a way that it is noticed immediately. So one should be able to know that पोस्टर किस टॉपिक पर आपने बनाया है. तो पोस्टर का जो मेन टॉपिक होगा वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए. अब बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ. आपने बचपन में बहुत सारे जिंगल्स पढ़े होंगे, स्लोगन्स याद किए होंगे, राइम्स याद किए होंगे, राइमिंग लाइंस आप जानते हैं, फ्रेजेस आप जानते हैं. इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो. तो स्लोगन्स, जिंगल्स और राइमिंग स्कीम्स, राइमिंग लाइंस, राइम्स, फ्रेजेस, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने पोस्टर को खूबसूरत बनाने के लिए. दूसरा, जो आप फॉर्मेट या लेआउट बनाओगे वो प्रोपोर्शनेटली स्पेस्ड होना चाहिए. एकदम ऐसे कंजस्टेड नहीं होना चाहिए. हर अल्फाबेट दिखना चाहिए, बहुत ही स्पेशियस होना चाहिए. और इसके लिए आप बहुत ही अट्रैक्टिव डिफरेंट फॉन्ट्स और स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे देखिए, मैंने इंग्लिश को कितने अलग अलग तरीकों से लिखा है. आप तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो आप लोग उसका इस्तेमाल करिए अपनी क्रिएटिविटी का. सी, आई हैव रिटन इंग्लिश इन 7 डिफरेंट वेज, 1 2 3 4 5 6 and 7. और आप अपने खुद के स्टाइल भी इन्वेंट कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं आपके 8th पॉइंट पर, जहां पर ये कहा जाता है कि पोस्टर को अगर आपने अट्रैक्टिव बनाना है तो अपने जिंगल्स और स्लोगन्स के अलावा आप अपनी सेल्फ मेड पोएट्री भी यूज कर सकते हो. कुछ 2 लाइनें इधर से उड़ाइए किसी राइम से और 2 लाइनें अपनी बना लीजिए. तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है. और सिंपल ड्राइंग, जिनकी ड्राइंग्स अच्छी है वो तो ड्राइंग का इस्तेमाल करें. अदरवाइज जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वो सिंबल्स या मैचस्टिक फिगर्स को यूज कर सकते हैं. ये देखिए बच्चों, मैंने कुछ बनाया है. लाइक इफ यू वांट टू शो अ मेल और अ बॉय, यू कैन मेक लाइक दिस, एंड दिस इज गर्ल, देन दिस
this you can be used. So one should be very clear to you that your symbols and images are used in such a way that it attracts or it adds up to the visual treat of the poster. ऐसा गंदा या भद्दा मत बनाइए, नहीं आता कोई बात नहीं, सिंपल इमेजेस बनाइए, वो भी नहीं आता कोई बात नहीं, मोर ऑफ टेक्स्ट रखिए. इट इज कल्मिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, टेक्सचुअल एज वेल एज विजुअल. तो विजुअल अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए उसको. उसके बाद आते हैं कंटेंट्स पर. अब किसी भी पोस्टर का जो कंटेंट होता है बच्चों, वो उसके थीम पर आधारित होता है. उसका मेन सब्जेक्ट आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए. मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि थीम या सब्जेक्ट बहुत ही हाईलाइटेड होना चाहिए. उसके बाद अगर वो कोई इवेंट है तो उसका डेट, टाइम, वेन्यू और ड्यूरेशन बहुत क्लियर होना चाहिए. जो ऑर्गेनाइजर है या जो भी उसकी इशूइंग अथॉरिटी है जिनके बनस्पत ये इवेंट हो रहा है, उनका नाम जरूरी है. फिर कोई इवेंट्स कई बार ऐसे होते हैं जिसके अट्रैक्शंस देने आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनके डिटेल्स आप दे दीजिए. जैसे अगर कोई मेला लगा है, फेयर है, तो स्टॉल के बारे में, सेल के बारे में, गेम्स के बारे में, प्राइजेस के बारे में जिक्र कर दीजिए. फिर कोई ना कोई स्पॉन्सर ज़रूर होगा, स्पॉन्सर का नाम ज़रूर लिख दीजिए. फिर वो इशू किसने किया है उसमें ऑर्गेनाइजर्स का नाम लिख दीजिए. तो मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों की क्रिएटिविटी जो होती है वो आपके पोस्टर की सबसे एसेंशियल एलिमेंट है. तो आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस मैंने बनाए हुए हैं और वो ये सिंबल्स हैं. नॉट नेसेसरली माई ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, लेकिन देखिए मैंने कोशिश की है. तो कुछ एक सिंबल और इमेजेस अगर आप इस तरीके से, जैसे ये डेंजर मार्क है, से नो टू सिगरेट है, ये आई हो गया, ये हैंड हो गया, ये प्लस क्रॉस मार्क हो गया, ये बच्चा दौड़ता हुआ, ये स्किप करता हुआ और ये डंबल्स उठाता हुआ, ये मेल का, फीमेल का, ये हार्ट का, ये मुस्कुराता हुआ इमोजीज वगैरह की आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हो. ये इंजेक्शन हो गया, ये टैबलेट हो गया, ये बॉटल हो गया. इस तरीके से आप कुछ एक बहुत ही सिंपल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो. अब एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है बच्चों आपके लिए, एक एग्जाम्पल, सो दैट की पोस्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ये एक ऐसा पोस्टर है विच आई हैव, इट हैज बीन, यू हैव टू डिजाइन अ पोस्टर टू लॉन्च अ ट्री प्लांटेशन कैंपेन. और इनमें बच्चों ये जरूर ध्यान देना है आपने, नोटिस की तरह ही इसको आपने चारों तरफ से आउटलाइन करना जरूर है. इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे इस तरीके से. बेशक आप पोस्टर बनाने के बाद उसको आउटलाइन कर लीजिए, नो इश्यूज, लेकिन जरूर करना जरूर है आपने स्केल से. और ये ध्यान रखेंगे आप कि आपका पोस्टर तभी खूबसूरत लगेगा जब आप इसको आउटलाइन कर लेंगे. ठीक है. अब ये पोस्टर है ट्री प्लांटेशन कैंपेन का. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वैसे भी अब जो पोस्टर्स और नोटिसेस आपको आएंगे वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर आएंगे, तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने. आप कहीं से भी स्टडी मटेरियल जहाँ से भी इकट्ठा करिए, लेकिन कम से कम हर टॉपिक पर आपको 10-10 स्लोगन्स या प्रोवर्ब्स याद होने चाहिए. तो ऐसा ही एक पोस्टर मैं आपको बताने जा रही हूँ. ये है ट्री प्लांटेशन कैंपेन का. आप देखिए मैंने एक सिंपल सा हैंड फिगर बनाया है और उसमें एक प्लांट बना दिया है. एक सिंबॉलिक ड्राइंग मैंने बनाई है और लिख दिया मैंने प्लांट फॉर प्लैनेट. सो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा अलग से सोचना पड़ा, बहुत ही सिंपल सा है. फिर आप बचपन से सुनते आ रहे हो प्लांट मोर ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज, तो उसी से मैंने एक उठा लिया. देखिए, प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोलॉन्ग योर लाइफ. ठीक है. ईच वन टीच वन आपने सुना होगा. सिमिलरली यू कैन मेक ईच वन प्लांट वन. ये देखिए, फिर मैंने सिंपल सा ट्री एक बना करके उसके फायदे गिना दिए. आपसे ज्यादा कौन जानेगा ट्रीज के फायदे. बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं ये. बस ये कि आप होमवर्क नहीं करते हो, थोड़ा सा स्पेड वर्क करना है, थोड़ा सा अपनी तैयारी करनी है, तब पोस्टर शुरू करना है, कुछ भी नहीं बना लेना है. अब ट्रीज के क्या क्या फायदे हैं देखिए, मैंने लिख दिया है लाइन से. आप तो बहुत ज्यादा लिख सकते हो, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट 6 लिख दिए हैं. ब्रिंग रेन, बारिश लाता है पेड़. इट प्रोवाइड शेड, हमें छाया देता है. ऑक्सीजन रिलीज करता है, हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स देता है. हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाता है पेड़, और हमारी सराउंडिंग्स को ग्रीन और क्लीन बनाता है. अब चूंकि ये ट्री प्लांटेशन कैंपेन का पोस्टर था, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये एक एक्टिविटी है, ये एक इवेंट है जो होने वाला है. तो आप लोगों को मोटिवेट करिए कि ज्वाइन द ट्री प्लांटेशन कैंपेन. और वो कहाँ कहाँ है? ऑन
किस डेट पर है, किस डे पर है, आपने ये मेंशन कर दिया। किस समय पर है, 10 बजे सुबह है। वेन्यू क्या है उसका, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी। तो ये देखिए, कुछ भी हमने ज्यादा नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा पोस्टर मैंने बनाया है, बट इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, इजंट इट? तो और सब कुछ जब आप बना लें, आपको लगे कि अब कोई और पॉइंट्स भी बचे हैं, कुछ और छूट रहा है, तो आप इस तरीके से एक बबल बना करके या क्लाउड बना करके या स्टार बना करके, विच एवर वे यू वॉन्ट यू कैन इंट्रोड्यूस इट। और लास्ट में आप लिख देंगे इशूड फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक बाय बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी। तो लास्ट में स्पॉन्सर्स या ऑर्गेनाइजर्स का नाम हरगिज ना भूलें, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं जब वो करते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सोच और क्रिएटिविटी थोड़ी सी चाहिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। और उसको फिर प्लान करिए और अपना आराम से एक सुंदर सा अट्रैक्टिव सा पोस्टर बनाइए और 4 आउट ऑफ 4 पाइए। दैट्स ऑल। See children, the camera has been zoomed on this poster and it is for you. Please pause the video and then watch it carefully. See, it is drawn in 4 lines and then these several things are written in clarity with simple handwriting using navy blue sketch pen, and you can just note it down somewhere in your classic copies or in the notes copy. And thank you so much. And that's all for today, children. This was poster. And see children, writing skill only gets sharpened and harped when you practice whatever has been taught to you. If notice has been taught, at least practice 10 different examples so that you can have problems and I can clarify those doubts. Similarly, poster, you don't need much of it. Just select 10 topics and note down 7 to 8 different slogans or jingles or proverbs, and practice it somewhere in your classic copy or some notebook, and that's it. So I hope this is going to be very interesting for you. Please watch it and bye bye.